السلام علیکم خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں آج کا حسب حال۔ میں ہوں جس کا میزبان جنید سلیم، اور ناظرین شو کا آغاز کر رہے ہیں ایک ایسی محفل موسیقی سے جس میں ایک ہی وقت میں ستار بھی موجود ہے، ڈھولک بھی موجود ہے، گٹار بھی موجود ہے اور چمٹا بھی موجود ہے۔ جنید میاں، سب سے پہلے تو بھائی شکریہ ادا کرتے ہیں آپ کی عظمت شناسی، غور نوازی کا، کہ آپ ہمیں اپنے پروگرام میں بلا لیتے ہیں۔ جنید میاں، یہ المیہ ہے کہ جو موسیقی جانتے ہیں، گردش زمانہ نے ان کو اس موڑ پہ لا کھڑا کیا ہے کہ موڑ پہ کھڑے ہوں تو محلے کے بچے اکٹھے ہو کے مشورے دینا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ مشین بیچ کے سلنٹی اور بنٹیاں بنانے والی مشین لگائیں، 4 پیسے اکٹھے ہو جائیں گے۔ معذرت کے ساتھ میرا خیال ہے کہ بچوں کا مشورہ بہت صائب ہے۔ دیکھیں اتنے سال ہو گئے آپ ہمارے شو میں تشریف لا رہے ہیں، میں نے آج تک یہ مشین بجتی ہوئی نہیں دیکھی۔ بھائی اس کو کوئی بجائے گا تو بجے گی، تو انہوں نے بجانا ہے نا، اور میں نے بجانا ہے سر۔ یہ خود تو نہیں بج سکتی بیچاری، یہ تو بے زبان ہے، یہ بیچاری خود کیسے بجے گی؟ تو استاد محترم کو آپ نہ موقع دیتے ہیں اور نہ طور میں دیتے ہیں، تو استاد محترم کیسے بجائیں؟ وہ بے زبان ہے تو آپ کون سے کپڑے پڑتے ہیں؟ ابے بات سنو، خاموش ہو۔ خان صاحب، میں تمہارا گانے بجانے سے کیا تعلق؟ بزرگ ہو تو بزرگ کرو، آؤ جا کے بھینسیں نہلا کے ان کے سینگوں پہ تیل ملو، چلو۔ خان صاحب میرے استاد نو گلا نہ کرنا، اپنا استاد بھی تو دیکھو لگتا ڈین نو طلاق ہوئی۔ یار خدا کے لیے پھر وہی شروع ہو گیا کام۔ ہو گیا شگرد ویکھو نا مراد، وہ تینوں مٹر چو کڈیا کنے میں ہوئے؟ وہ مرے ایڈی لائٹ گرین سنڈی تے مٹر چ ہوندی ہے۔ جنید صاحب میرا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے، ورنہ اتنے ٹائم کی میں تو 1000 روپیہ لیتا ہوں۔ بیٹا اتنے ٹائم پہ موت بھی آ جاتی ہے۔ ساجد خدا کی خیر مانگے۔ بزرگوں کے ساتھ شوقی یہ دیکھیے ذرا، یہ چمٹے والے بھائی صاحب، ان کو تمیز نہیں ہے اور بنے پھر رہے ہیں گانے بجانے والے۔ میں نے زندگی میں پہلی دفعہ ان کو کہیں زمین پہ پایا ہے، ورنہ ایسے آدمی ہمیشہ بجلی کے کھمبے پہ اوپر کمر پہ بیلٹ باندھ کے چمٹے ہوتے ہیں۔ گل بات کیجیے، میں تن سے دسا، میں کبھی کھمبے تھلے ننگیا بھی نہیں۔ آ ویلو مینوں کتے چڑھاؤندے کھمبے تے؟ اپنے تسی استاد دے منہ ویکھو اپنے، باؤ جی چنگا بھلا موسم ہوندا، انہاں دے منہ ویکھو، لگدا جی بڑی دھوڑ اڈنی۔ بس کریں یار، ایسے باریکی ہے اس میں، جی اس میں باریکی ہے، دھول توڑ رہی ہے، دھول توڑ رہی ہے، تشنگی بھی ہے اس میں۔ ہاں تشنگی بھی ہے اور خنکی بھی پائی جاتی ہے۔ تو جنید میاں بات یہ کرنے کے لیے حاضر ہوئے تھے کہ یہ بچہ ابو بکر، یہ ماشاءاللہ یہ استاد محترم کے شاگرد ہونے کے لیے تشریف لائے تھے، تو ہم نے کہا کہ چل کے آپ کو ملوائیں کہ دیکھیے آج بھی کلاسیکی موسیقی کس لیول پہ پائی جا رہی ہے۔ یہ ماشاءاللہ ان کے والد محترم کی دو کاٹن ملے، ہاں 2 کاٹن ملے، ایک تو بھٹو دور میں نیشنلائز ہو گئی اور دوسری کو پچھلے دنوں آگ لگ گئی۔ استاد جی یہ تعریف کر رہے ہیں کہ افسوس کر رہے ہیں؟ بیٹے افسوس یا تعریف کس بات کی، یہ تو اللہ کی کرنی ہے۔ یہ دوسری جو آگ لگی ہے یہ اللہ کی کرنی ہے، اور وہ جو پہلی تھی نیشنلائز ہوئی وہ بھٹو کی کرنی ہے۔ ہمارا تو اس میں کوئی بیٹے عمل دخل نہیں ہے۔ ہم تو فن کی دنیا میں کھوئے ہوئے لوگ ہیں۔ ہاں بڑے فن کی دنیا۔ میں بہت نہیں کوئی گل دساں، جی انہوں نے تینوں کئی سال پیچھے لا کے نا تے خیر تے کہہ دینا یہ کام بڑا اوکھا۔ اوے پتر اوے نویں ٹانگے گھوڑے دے مالک، بیٹا تم کیوں سنگنگ میں بولتے ہو؟ پوری بستی چ ایہو جے بابے کو لالٹن ہوندی ہے بس۔ تمہیں کیا پتا ہے کہ گائیکی کیا چیز ہے؟ جنید میاں یہ تشریف لائے ہیں شاگرد ہونے کے لیے استاد محترم کا، تو ہم نے کہا کہ آپ کو بتائیں اور ان کو بھی بتائیں
कि अल्लाह के फजल से किस माशाल्लाह खूबसूरत प्रोग्राम में हमारी गाहे गाहे पजीराई होती रहती है। और बेटा ये बस आपको मालूम होना चाहिए जी जी कि शागिर्दी के भी कुछ असूल होते हैं। रमूज होते हैं, कुछ असूल होते हैं। उस्ताद मोहतरम कम अज कम 2 किलो मिठाई का डिब्बा और एक चादर और 500 रुपया नकद लेते हैं शागिर्द होने के। यार अब्बा की कॉटन मिले हैं, 10 किलो रुई भी दे दो। उस्ताद जी के पास रजाई नहीं है आजकल। 10 किलो में बेटे कौन सी इनकी रजाई बननी है? 10 किलो तो इनके नाक और कानों में ही चला जाएगा। Oh my God। ਬਹੁ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਯਾਮਾ ਵੱਜਣ ਵਾਲਾ 24 ਘੰਟੇ ਬਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮਰੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਖਰਗੋਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। शोखा जो किरली पुठी हुई होंगी है। ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਵੀ ਵੇਖੋ ਦੋਵੇਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੇ ਦੇਗਾਂ ਵਾਲੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਪੁੱਠੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ। ये क्या बात हुई यार? ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ। ਆਹੋ ਸਹੀ ਹੈ ਬਾਊ ਜੀ, ਲੱਗਦਾ ਤੂੜੀ ਵਾਲੀ ਗੱਡ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਢੱਗੇ ਖੋਲ ਕੇ ਛਾਵੇਂ ਬੰਨੇ ਨੇ। मरे लच्छे वाले दी टल्ली होंगी शोखे मेरे उस्ताद मोहतरम के साथ बदतमीजी कर रहे हो। अपना उस्ताद भी पुत्र श्याम जो झुग्गियां वाले दा लाड़ा हुंदा है बेटे वो देख नहीं रहे कि वो 500 रुपया और सूट लेके आए हुए हैं। बस उस्ताद जी आप 500 की बात कर रहे हैं, मैं तो 5000 रुपया 5 देगे और 5 सूट लेके आया हूँ। ਬਸ ਫਿਰ ਮਿਲਣਾ ਸੜ ਗਈਆਂ ਨਾ, ਘਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਬਸ। ये अपने अब्बा के कारोबार के साथ वही करेगा जो जरदारी साहब ने पीपल्स पार्टी के साथ किया। ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆ ਔਰ ਹੋਵੇ ਅੱਗ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਣੀ ਹੋ? बेटे जुग जुग जियो बेटा, जुग जुग जियो। कहाँ ये देगे और सूट और ये दबा करे वो चादर मिठाई को। चादर बिछा के हमने कौन सा उस्ताद मोहतरम की गिटके बढ़नी ये कहाँ ये सारा सामान? उस्ताद जी ये बाहर है सब कुछ। तो तुम क्यों अंदर हो बेटा? उस्ताद मोहतरम बददुआ दे दो बंदा फिर 2-3 साल के लिए अंदर हो जाता। अबू बकर मैं तो जिसको भी शागिर्द करता हूँ स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल लेता हूँ। जिदी बात जो खबर भी होती है। ਦੇਖਿਆ ਜੇ ਬਾਊ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਲਚਾ, ਕੋਈ ਬੋਸਕੀ ਲੈਣ ਡਿਆ, ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਡਿਆ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਕੋਲੋਂ, ਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਲੈਣ ਡਿਆ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਬਲਕਿ ਕੁਝ ਦੇਣੇ ਹੀ ਆ। अच्छा क्या देते हैं? ਦੁਆਵਾਂ। हाँ जी दुआवां देंदे ने, अल्लाह ने तेनू बड़ा देना है ते ओदे चों फिर तू सानू देना है। यार मेरी बात सुनो अबू बकर, सोच समझ लो अच्छी तरह, ठंडे दिल के साथ तुम अपनी जिंदगी का एक अहम फैसला करने जा रहे हो। वो पुत्रो किड़ा एटॉमिक एनर्जी च नौकर होने लगा वो खान साहब दा शिगिर्द पैना ही है, डॉक्टर कदीर खान साहब दा शिगिर्द पैना। मेरी बात सुनो यार, फैसला करने से पहले यूं करो कि तीनों से ना थोड़ा थोड़ा सुन लो फिर फैसला कर लो। लो जी खान साहब आओ चलिए जी। अच्छा क्यों बेटा? प्लीज बैठे बैठे। सुना के शिगिर्द कर लेना। नहीं नहीं क्यों, आप क्या आप कमाल करते हैं आप। आपको अपने फन पे भरोसा ही नहीं है? नहीं भरोसा क्यों नहीं है? क्यों नहीं है भरोसा? मगर शागिर्द असी अडोंब के लिए आए और राज जो कोई और लुट ले। बैठे बेटा बैठे बेटा बेफिक्र हो जाए, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਫੂਡ ਅਥਾਰਟੀ ਵਾਲੇ दूध का दूध तो आप पानी का क्या पानी। करें, अभी 5 पैन के दूध और 5 पैन पानी हो जाता है। अच्छा जी सुनाए ना थोड़ा थोड़ा ताकि फैसला हो सके। कलियां गुजारा किवें रातां कालियां डंगदियां मैनू रुत प्यारे वालियां तेरे बाजों जी नहीं लगदा मर गई। वो कैसे शौकी हो तुम? क्लासिकल उस्तादों के साथ आए हुए हो और ये क्या साथ उसके टप 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 जो खुली जूती पाई होंगी। बाबू जी जरा कोशिश करना मेरा शिगिर्द होवे, मैं कभी बोसकी नहीं पाई। हेलो जनाब। हाजिर जनाब। इधर भी पिंड बैठे, इधर भी पिंड बैठे, इधर भी पिंड बैठे। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਐਂਟਰੀ ਗਾਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਖੁੱਲਾ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਬਾਬੂ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਲਓ ਜਨਾਬ, ਜਦੋਂ ਮਹੀਂ ਵਾਲ ਆਇਆ ਨੀਲੀ ਘੋੜੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਹੁਣ ਵੀ ਦੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਡੱਕ ਲੈਨੇ ਹੋ? ਤੇ ਰੌਲੇ ਪੈ
ਕਹਿ ਗਏ ਕਿ ਮਹੀਂਵਾਲ ਨੀਲੀ ਘੋੜੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਉਤੋਂ ਨਾ ਮੁਰਾਦ ਨੇ ਘੋੜੀ ਦਾ ਰੰਗ ਉਹ ਦੱਸੇ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸੋਹਣੀ ਉਹਨੂੰ ਬਲੂ ਘੋੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸੀ ਜ਼ਮਾਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਸੀ ਨੀਲੀ ਘੋੜੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਨੀਲੀ ਘੋੜੀ ਤੇ ਲਾਲ ਪੈਰ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵੀ ਤਿੰਨੇ ਸਿਰ ਵੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਸਿਰ ਫਿਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨੀਲੀ ਘੋੜੀ ਵਾਲਿਆ ਦਿਲ ਸਦਕੇ ਤੇਰੇ ਉਹ ਨੀਲੀ ਘੋੜੀ ਵਾਲਿਆ ਦਿਲ ਸਦਕੇ ਤੇਰੇ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਕਦਾ ਲਾਲਿਆ ਸੁਨਹਾਰੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਨੀਲੀ ਘੋੜੀ ਵਾਲਿਆ ਦਿਲ ਸਦਕੇ ਤੇਰੇ ਉਹ ਨੀਲੀ ਘੋੜੀ ਨੀਲੀ ਘੋੜੀ ਵਾਲਿਆ ਦਿਲ ਸਦਕੇ ਉਹ ਗੋਡੇ ਬਾਬਾ ਓਏ ਗੋਡੇ ਬਾਬਾ ਇਹਦੇ ਨਾਮ ਮੁਰਾਦ ਭਾਵੇਂ 3 ਘੰਟੇ ਗਾਉਂਦਾ ਰਵੇ ਨੇ ਦਗੜ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ चले आप भी कुछ सुनाए ना, असल में तो आपके पास ताड़ी वाली हो ताड़ी वाली हो अभी ले हाथ कंगन को आरसी क्या चले दोस्ताद मोहतरम इजाजत बेटा इजाजत यहाँ भाई ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ एक मिनट आप गाएं जरा। कलियां गुजारा किवें रातां कालियां गगनियां मैनू रुत प्यार वालियां ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਲਾਂ ਸੜੀਆਂ ਕੂੜ एक छोटा सा वक्फा हमारे साथ रहिएगा। एक खातून बन के सोचें कि वो सारा दिन उस पे घर में क्या गुजरती है, उनको उस बेचारी औरत को किन किन जुमलों का सामना करना पड़ता है, किन किन तानों का सामना करना पड़ता है। कभी बेऔलादी का ताना, कभी फोड़पन का ताना, कभी खाना ठीक ना पकाने का ताना, कभी जहेज ना लाने का ताना। अच्छा भाईजान, अक्सर हम अपने शो में भी जिक्र करते हैं और मुख्तलिफ टॉक शोज़ में भी एक बात पर बहस होती सुनते हैं देखते हैं, वो है ख़वातीन पर जिस्मानी तशद्दुद। ज़ाहिर है कि जैसे जैसे हमारा माशरा ज़ेवर तालीम से आरास्ता हो रहा है, कुछ किसी हद तक जो है वो मीडिया भी अपना रोल प्ले कर रहा है, तो इस हवाले से कुछ अवेयरनेस आ रही है कुछ पढ़े लिखे लोगों में, कुछ शहरी इलाकों में। लेकिन एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसकी तरफ बहुत कम तवज्जो दी जा रही है, वो जिस्मानी तशद्दुद नहीं है, वो ख़वातीन पर ज़हनी तशद्दुद है, वो नफ्सियाती तशद्दुद है। उसको हम एड्रेस करने के लिए तैयार ही नहीं है, बल्कि एड्रेस करना तो बात की बात है, उस मामले की संगीनी को नहीं समझ रहे, बल्कि यही नहीं समझ रहे कि ज़हनी तशद्दुद होता क्या है खातून के ऊपर। हाँ जी घर जाते हैं लेट, यार दोस्तों में बैठ के 2-3 घंटे लेट जाते हैं, जाते ही हमें बीवी को कह दो ओए बड़ी मुश्किल से बचाओ, ट्रक लगने ही लगा था गाड़ी। नहीं, सबसे पहले तो यही ज़हनी तशद्दुद है कि आप बीवी को बगैर इत्तला दिए घर से 4 घंटे 3 घंटे के लिए गायब होते हैं, ये भी तो ज़हनी तशद्दुद है ना। बिल्कुल आप सोचें तो सही ना, एक खातून बन के सोचें कि वो सारा दिन उस पे घर में क्या गुजरती है, उनको उस बेचारी औरत को किन किन जुमलों का सामना करना पड़ता है, किन किन तानों का सामना करना पड़ता है। कभी बेऔलादी का ताना, कभी फोड़पन का ताना, कभी खाना ठीक ना पकाने का ताना, कभी जहेज ना लाने का ताना, मतलब उसके घर वालों के उसके ताने, ससुराल के ताने। हमारा फिरता रहता है, यार तुहानू की अपने ध्याने फिरन दे, तुहानू की आप अपना काम करें, उसको ताना जरूर देना है। हुण किथे कुड़ी ब्याह दी ने अबे तेरे ने, यार जहाँ पे ब्याह दिया तेरे वाली तो ठीक भी आई गई है। अच्छा, प्रॉब्लम अब ये है कि जब औरत मर्द को ज़हनी तशद्दुद का निशाना बनाती है तो मर्द किसी ना किसी अंदाज में रिएक्ट करता है, या कम से कम अपना एहतजाज जो है वो रजिस्टर जरूर करवा लेता है। लेकिन जब औरत जो है वो ज़हनी तशद्दुद का निशाना बनती है तो किसी को, सुनने वाले को भी महसूस नहीं होता कि ये बंदा जो है ये अपनी बीवी को मेंटली टॉर्चर कर रहा है। उसको मेंटल टॉर्चर को हम समझने के लिए तैयार नहीं है। ये सुबह जिस तरह बात कर रहा था अपनी एहलिया के साथ, तुमने देखा था ना कैसे करता था, थैला कैसे कर रहा था, तो चंगा भला हंस रहा होना। नहीं, मैं आपको पता है कि बाद में क्या बात है, नहीं तो बता के तो आया था तुम्हें, आ जाता हूँ, अभी रिकॉर्डिंग में लगा हुआ हूँ।
अच्छा भाईजान मैं ये कह रहा था यानी सारी जो खुश मिजाजी है वो अपने दोस्तों के लिए है और सारी जो पूरे दिन की बदमिजाजी जमा करके वो आपने घर वालों के लिए रखी होती है। एक इंतहाई अफसोसनाक जो है सर्वे मैं चंद दिन पहले एक उर्दू अखबार का जो हफ्त रोज़ा एडिशन है उसमें देख रहा था कि वतन अजीज़ में 16% खवातीन ऐसी हैं जिनको उनके शौहर उसके घर वालों से नहीं मिलने देते या मिलने पर मुलाकात पर नापसंदीदगी का इजहार करते हैं। ये इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है कि जिस घर में उस खातून ने सारी जिंदगी गुजारी है उसके बाद यकदम पाबंदी लगा दी जाए कि तुमने अपने घर वालों से फोन पे भी बात नहीं करनी, मुलाकात भी नहीं करनी, वो तुम्हें ये पढ़ाते हैं फलां पट्टी पढ़ाते हैं। बड़ा बड़ा जुल्म है नया सियालकोट है। अच्छा मेरी बात सुनो। नहीं वैसे सीरियसली ये तो बहुत बड़ा जुल्म है, ये तो बहुत बड़ा जुल्म है। मैं समझता हूं कि आपको दाद देनी चाहिए औरत को। मैं किसी वक्त सोचता हूं तो मैं कहता हूँ यार रब ने कितना जिगरा दिया हुआ है, कितनी दलेरी दी हुई है औरत को कि वो बेचारी अपना सारा कुछ छोड़ के, उसको कुछ पता नहीं कि आगे क्या है, किसकी तबीयत किस तरह की है, अनदेखे लोग अनसुने लोग, वो बेचारी अपना उठा के 4 कपड़े तो उसके घर आ जाए। जैसे कहते हैं ना ब्लाइंड खेलना, औरत तो एक तरह से ब्लाइंड खेलती है ना। हाँ जी जैसे नूर जाने का हुआ ना जाने कैसा सफर है मेरा, हाँ जी कहाँ है मंजिल कहाँ है बसेरा। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल सेम यही हालत होती है। और वो अगर आ जाती है बेचारी अल्लाह ताला के सिस्टम को कबूल कहते हुए, तो उसको हुक्म मानते हुए, तो खुदा के वास्ते ये जुल्म नहीं करना चाहिए। बिल्कुल बेगम को चलो आपको किसी बात का गुस्सा है तो उस पे है ना, उसके माँ बाप को ना अजियत दे, उसको बेचारी को ये अजियत तो ना दे। माँ बाप सबको प्यारे होते हैं। साइकेट्रिस्ट ये कहते हैं कि जब शौहर जो है वो बीवी पर किसी भी किस्म का कोई ज़हनी तशद्दुद करता है, उसको टॉर्चर करता है, उसकी तौहीन करता है, किसी भी अंदाज में उसकी हद तक करता है, उसको ह्यूमिलेट करता है, तो सबसे ज़्यादा बीवी के बाद, उस औरत के बाद जो मुतासर होता है वो बच्चे होते हैं। वो अच्छा बच्चे सिर्फ ये नहीं करते, उनके दिल में माँ की हैसियत तो शायद रहती है, माँ की इज्जत तो रहती है, लेकिन लामहला अनजाने में फिर वही सलूक जो है वो अपनी बहनों के साथ और फिर अपनी बीवी के साथ वो मुस्तकबिल में रवा रखते हैं। वो ये समझते हैं कि ये तो हमारा हक है। अच्छा फिर जब हम खवातीन पर ज़हनी तशद्दुद की बात करते हैं तो हमारे जहन में आम तौर पर या यूँ समझ लें कि 90% जो है वो बीवी का, एक खातून खाना का तस्वुर आता है। इस ज़हनी तशद्दुद का निशाना खवातीन को बीवी के तौर पे भी बनना पड़ता है, माँ के तौर पे भी बनना पड़ता है, बहन के तौर पे भी बनना पड़ता है। बात सिर्फ एहसास की है। हम सिर्फ अगर महसूस करना शुरू कर दें, देखने वाली आंख से देखें और सुनने वाले कानों से सुने, तो हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी नज़र आना शुरू हो जाएंगी, सुनाई देने लग जाएंगी, जो इससे पहले हम नहीं देखते थे, नहीं सुनते थे कि ये तौहीन है एक इंसान की, एक खातून की। मतलब देखो कि बहनों के मामले में हम यानी तालीम के बराबर मौके बच्चियों को फराहम करते हैं, लेकिन हमने उसके जहन में ये बात बिठा दी हुई है कि तुम्हारा इस दुनिया में आमद का जो तुम्हारा वाहिद मकसद है वो तुम्हारी शादी है, बस। उसके अलावा वो जीती जागती इंसान है, वो अच्छी स्टूडेंट हो सकती है, वो अच्छी प्रोफेशनल हो सकती है। अपनी बेटियां घर आई होती हैं तो बहू को कहती है कि तुम को जा रही है अपने माँ बाप। मुख्तलिफ अंदाज में जो हमें मतलब हीला बहाना मिलता है ह्यूमिलेट करने का औरत का, हम हाथ से नहीं जाने देते। हाँ जी ये बच्चे जो होते हैं, माँ का जिस तरह तुम कह रहे हो, माँ पे जिस कदर तशद्दुद होता है, ज़हनी तशद्दुद, आप यहीं से देख लो ना, माँ बेचारी सारा दिन अडीग के शाम को पुत्र घर रहता है तो उससे सिर्फ इतना पूछती है कि कहाँ थे तुमने बताया ही नहीं, को फोन ही नहीं किया ये वो, तो वो आगे से इस तरह माँ को बोलता है, इधर ही था, अब जरूरी तो नहीं बार बार ओ या अल्लाह। क्यों भाई खुदा के वास्ते ये ज़हन में क्यों नहीं रखते आप लोग कि वो माँ है, तुम उसकी प्रॉपर्टी हो, तुम उसके जने हुए हो, उस बेचारी को ये तो बताओ कि तुम कहाँ से आए हो या कहाँ जा रहे हो। यहाँ पे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। और मेरा भाई हम तोल में गड़बड़ नहीं करती, हम सौदा पूरा तोलती है। अगर हम कम तोले तो दोज़ख हमारा मुकाम। नहीं तो पहले तुमने कौन सा जाना है नारायण का गान।
नाज़रीन, मौसम सरमा में आसमान से बातें करती हुई ड्राई फ्रूट की कीमतों पर अक्सर हम गुफ्तगू करते रहते हैं। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस महंगाई में ड्राई फ्रूट बेचने वाले दुकानदार का कितना अमल दखल होता है। आइए गुफ्तगू शुरू करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जुनैद साहब, ये सुनहरे तो ऐसे ही बदनाम है, असल सोना तो ये रख के बैठे होते हैं। आप देखें ना, सोने का तो रोज रेट टीवी पे भी आता है और अखबारों में भी आता है। बिल्कुल। ये जो अपनी गोल्ड की चीजें रख के बैठे हुए हैं, आई मीन ड्राई फ्रूट, उसके रेट का किसी को पता ही नहीं। और ऐसा रोब बंदे पे डालते हैं। मैं चला गया हूँ पिछले दिनों इसकी दुकान के ऊपर। पहले तो मैं नहीं समझा कि ये दुकानदार बैठा हुआ है। मैंने कहा शायद दुकान में को गाय घुस गई हुई है। तो मैं अपनी तरफ से वो देखने गया हूं, तो आगे दुकानदार निकल आया। मैंने कहा भाई जी, बादाम कौन से हैं और कैसे हैं और किस तरह हैं? कहता है ये बताओ, पाकिस्तानी लेने हैं, देसी लेने हैं, अमरीकी लेने हैं या जापानी लेने हैं? मैं कहा यार जेड़े मर्जी दे दे, मैंने उनसे बातें करनी है। और मेरा भाई हजारों किस्म के बादाम आ चुके हैं। तो देखो ना जरा, इस तरह का डर खौफ डाल के इन्होंने सनप किया हुआ है आजकल गाहकों को। अजीजी भाई, जिस गाहक को पहचान नहीं होती कि ये कौन सी किस्म का बादाम है, उसको देसी बादाम, अमेरिकन बादाम कह के ये तोल देता है। हाँ जी, सही कह रहा है। इसने तो खुद बादाम में 6 महीने गुजारे हुए हैं। क्या मतलब? रिसर्च के तौर पे बादाम के छिल्लड़ में इसने रिहाइश रखी हुई है। असल में ये लोग सार्फिन की नफ्सियात से खेलते हैं और जो प्रोडक्ट जिस मुल्क की महंगी होती है या मशहूर होती है उसका ये नाम लगा। ये किसी देसी चीज को फौरी तौर पे एक लम्हे के अंदर ये ईरानी खुबानी बना देंगे, टर्किश बादाम बना देंगे, जो मर्जी कर दे, अमेरिकन बादाम। ये देखते हैं कि कौन सी चीज किस मुल्क की महंगी है या उसकी कदर है, ये फौरी तौर पे बगैर पासपोर्ट दिए उसकी शहरियत चेंज कर देते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। बादामों के पास कौन सा शिनाख्ती कार्ड होता है? ऐसा बात नहीं है बाबूजी, जो हमारे पास बादाम पड़ी है हम उसी का बताता है। बादाम पड़ी है तुम बताता है, अपने आप को भी कहो ना मैं बताती है। अपने नहीं जिन्स तब्दील करता। अच्छा देखिए, मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा अगर किसी चीज में इस वक्त प्रॉफिट मार्जिन मौजूद है तो वो ड्राई फ्रूट है। हाँ जी, अभी तो नहीं सर्दियां शुरू होती तो ये रोज सूट बदलता। यार कटहरे में वो खड़ा है। देखो कि एक काजू जो ये थोक में 1000 रुपए केजी खरीदते हैं, 1600 रुपए केजी फरोख्त करते हैं, 600 रुपए का नेट प्रॉफिट लेते हैं। इतना है कि प्रॉफिट? नहीं जी, बहुत बहुत ज्यादा पैसे कमाते हैं। और इनको कहे ना तो ऐसी देखो, यहाँ पे ये फिक्रा इस कदर तेजी के साथ बोला जाता है, कोई सोच समझ ही नहीं है, ना सुनने वालों को ना कहने वालों को, कि जी ये 2-3 महीने ही तो हमारे बिजनेस के होते हैं, अपने सारे साल की रोटी निकालनी होती है। यार बंदा है खुदा, ये क्या मुसीबत है लोगों के ऊपर, गाहक के ऊपर ये क्यों मुसीबत है? आप 3 महीने ड्राई फ्रूट लगा लो, बाकी 3 महीने भाई तुम बर्फ बेच ले। वेट फ्रूट लगा ले। अब मेरा मतलब है कि तुम ताजा फ्रूट लगा लो। अब गाहकों को अगर तुम ये कहो कि मैंने सारे साल के पैसे 3 महीने में ही कटने हैं, तो बहुत बड़ा जुल्म है। जुल्म है जी, बिल्कुल। और मेरा भाई, आपको 1000 रुपए 1600 रुपए में नजर आ रही है, वो काजू में से जो गंद निकलती है उसका कौन जिम्मेदार है? और 600 रुपए का गंद निकल आता है अंदर से। कुछ खुदा का खौफ इतना करो। गंदा माल क्यों ले लेते हो तुम? नहीं, बिल्कुल गलत कह रहे हैं। 1000 रुपए में बिल्कुल साफ माल इनको मिलता है, उसी तरह जाके बेचते हैं। अच्छा, एक और जुल्म ये करते हैं कि पिछले साल का जो बचा हुआ माल है उसकी भी मिलावट करते हैं। मतलब अगर आज में इनके पास 1 किलो चलगोजे हैं, उसमें ये आधा पाव पिछले साल के बचे हुए चलगोजे मिक्स कर देते हैं। आप कह रहे हो ना कि जिन लोगों को पहचान नहीं होती, जिन लोगों को पहचान होती है उनको भी ये बेवकूफ बना लेते हैं। बाबूजी, वो पिछले साल वाला हम किधर लेके जाएगा? वो भी तो साथ मिलाना ही है ना, लेकिन हमने अलग रखा होता है। खुदा हमें माफ करे, हम नहीं मिलावट करता। सर, इनकी वारदात का मैं तरीका बताऊं ये आपको? थैला बता सकता है, ये खुद वारदाती है। नहीं अजीजी, ये बात नहीं। इसकी ड्राई क्लीन की दुकान थी, साबुन से धो के ड्राई क्लीन के पैसे लेता जाता। नहीं मेरे भाई, ये लोग जो ड्राई फ्रूट वाले गाहक को ध्यान लगाकर एमी थोड़ा सा पिस्ता रख दिया, थोड़ा बादाम। सर ये तो चेक करें, ये तो खाएं, ये रेवड़ी तो खाएं, ये पिस्ता तो थोड़ा खाएं, और इधर तोल में गड़बड़ कर देते हैं। वो मेरा भाई, हम तोल में गड़बड़ नहीं करती, हम सौदा पूरा तोलती है। अगर हम कम तोले तो दोज़ख हमारा मुकाम।
नहीं तो पहले तुमने कौन सा जाना है नारायण का गान? सिर्फ तोल में ही बेईमानी नहीं, और 36 चीजों में बेईमानियां करते हो तुम लोग। और बाबा हम कोई नहीं बेईमानी करती, हमने अल्लाह को जान देनी है। और अल्लाह को सबने ही जान देनी है, इतने तुम शहर यार अफरीदी। ਬਾਊ ਜੀ ਇਹ 4 ਮਹੀਨੇ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਵੇਚਦਾ ਜੇ, बाकी 8 महीने कुल्फियां बेचदा जे, उत्ते रेड़ी ते लिखिया हुंदा राणा कुल्फी। अच्छा सर, अब ये चखाने की बात हो रही थी ना, तो ये जो लोग हैं ये ऊपर ऊपर अच्छा अच्छा ड्राई फ्रूट रखते हैं चखाने के लिए और नीचे सारा गंद बचता है। हाँ बिल्कुल, हाँ कई 2 नंबरियां करते हैं जी। अखरोट खुद हाथ में पकड़ता है, और भाई तुम तो तगड़े ही बड़े हो, तोड़ लेता है, ये देख ले कागजी, तो तोल के दे देता है, घर आके वो थोड़ी से नहीं टूट रहा। और फिर बाहर छापों में जो चखाने के लिए होता है वो अच्छा ही माल होता है। जब तोल के देना होता है फिर नीचे बोरियां रखी होती हैं या अंदर से जाके लेके आते हैं, वो नहीं उस तरह का। सर जी अक्सर ड्राई फ्रूट की कीमत का तायुन होता है उसके साइज की वजह से, तो ये साइज की ही मिलावट करते हैं, छोटे अखरोट बड़ों में मिला दिए, छोटे चलगोजे बड़ों में मिला दिए, इस तरह करते हैं ये। जैसे तुम छोटे से बड़ों में मिक्स हुए हो। सर देखे साइज का फ्रॉड तो साफ नजर आ रहा है, इसका अपना साइज धवाने बेचने वाला और बेचता ये अखरोट है। अच्छा सर, एक और भी मसला है, ये पाव या आध पाव लेने वाले से तो सीधे मुंह बात भी नहीं करते। जो किलो या 2 किलो लेगा उससे सही तरीके से डील करते हैं। तुम्हारे जैसा आदमी आधा पाव चीज खरीदता है और आधा किलो चखने में खा जाता है। नहीं वैसे थैले ये बात वो ठीक कर रहे हैं, आदत तुम लोगों को है उठा के खाने की। ये एक दिन मेरे साथ गया युल्फी, छाबे में से उठा के इसने बेवकूफ आदमी ने बादाम की गिरी मुंह में डाल ली। आधा घंटा उधर इस तरह तड़फता रहा जैसे कुकड़ के गले में आटा फंस जाए तो वो नहीं तड़फता। एक तो ड्राई फ्रूट की दुकान पे गया, इसने चलगोजा उठाने लगा, 3 चलगोजे ने इसको पकड़ के अंदर खींच लिया। मेरा मतलब है कि तुम छाबे में से उठा के खा रहे हो, दुकानदार की बददुआएं तो फिर तुम्हारे साथ ही है। दुनिया में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। मर्द भी ऊन लेते थे घरों में, बल्कि अक्सर मर्द ये काम कर दिया कर। बिल्कुल घर में। अब तो मर्द हजरात जो हैं वो कहते हैं ना जी, नहीं मैंने अखबार के दफ्तर भी जाना है, मैंने जाके शो भी करना है, अल्लाह टके का काम नहीं करना होता है। मैंने प्रोग्राम में जाके जुगते भी दफ्तर में भी बैठ के हमें टर्न चाय लाओ, इधर भी बैठ के हमें ये रूबरू पाया थे हो गए। जी आज आपको हस्बे माजी में मैं घरेलू फर्नीचर की बातें सुनाऊंगा। ऐसा फर्नीचर, इस तरह का फर्नीचर जो अब बहुत कम नजर आता है, बल्कि ना होने के बराबर है। एक होती थी बैद से उनी हुई कुर्सियां, ये जो कुर्सियां अब जिसके ऊपर वो फिक्स कर दी गई है गद्दी और ऊपर गुलाब चढ़ा के वो बना के दे देते हैं जी। बिल्कुल यही कुर्सी जो है ये बैद से ऊनी होती थी, बिल्कुल सही। वो बीच में से खाली होती थी और ऊनी होती थी वो बैद से। वो उसके गोले से होते थे, उसके खोल के जैसे ऊन के गोले होते थे, इसी तरह वो फिर वो कुर्सी को ऊन देते थे। और उसके पिछले बैग के ऊपर ये क्रोशिये से कड़ा हुआ गुलाब जो है ना जी गद्दी की बैग पे वो चढ़ाया जाता था, उस पे फूल शूल बने होते थे। और कुर्सी के ऊपर भी फोम की गद्दी रखी जाती थी या रुई वाली गद्दी, उस पे भी क्रोशिये से कढ़ाई कढ़ुई को फूल शूल बना होता था। अब ये जो कुर्सी है ये नायाब हो गई है। ये बच्चियों को जहेज में भी दी जाती थी, 4 कुर्सियां दे दी जाती थी या किसी वक्त 6 भी दे दी जाती थी, और वो बड़ी अहम समझी जाती थी। और बल्कि वो जहेज के फर्नीचर की शान होती थी वो कुर्सियां। मेरी कुर्सियां आ गई हैं जी। अच्छा, फिर ये कुर्सियां टूट भी जाती थी, वो जो ऊना हुआ होता था बैद, शायद वो बैठने बूठने से या किसी चाकू शाकू की वजह से कोई लोहे की चीज लगने से कट भी जाता था, वो आहिस्ता आहिस्ता फिर सारी उधड़ जाती थी। ज्यादा उधड़ जाती थी तो फिर गलियों मोहल्लों में जिस तरह ये कुकर शुकर ठीक करने के मिस्त्री आते हैं या 4 पाइयां बुनने वाले आके आवाज लगाते थे, मंजी पीढ़ियों ना लो, इसी तरह कुर्सियां बुनने वाले भी गलियों में आते थे। बिल्कुल सही। उनके पास ये वुड वाला बैद भी होता था और नायलॉन का भी बैद होता था, बिल्कुल सही। उससे भी वो उन लेते थे नायलॉन की वो।
तो वो फिर निकाल के गली में रख के तो वो उना ली जाती थी। सही। फिर उनकी पॉलिश पुलिश खराब होती थी तो वो पॉलिश भी करवा ली जाती थी, फिर नवीन कोर हो जाती थी। ये कुर्सियां अब बिल्कुल नहीं मिलती। एक गल, दूसरी गल, मुझे ड्राइंग रूम याद आता है तो मुझे बड़ा मजा आता है, बल्कि बड़ा प्यार आता है कि एक दौर होता था हमारे बचपन में, हमने अक्सर घरों में देखा हुआ है कि ड्राइंग रूम में चारपाइयां भी पड़ी होती थी बैठने के लिए। बिल्कुल सही। बैठने का जो रवाज है ना जी, अब जो सोफों के ऊपर बैठने का रवाज है, उस वक्त चारपाइयों पे भी बैठने का बड़ा रवाज था, बाइज्जत रवाज था। वो जो होती थी ना जी ड्राइंग रूम वाली चारपाई, उस पे वो गोल तकिया शकिया और उस पे भी कढ़ाई शढ़ाई ये वो, और उसके ऊपर कड़ी हुई चादर भी, कमरे का दरवाजा छोड़ के किधर एक इधर बिछाई। हाँ जी, एक इधर चारपाई और एक इधर, दोवें आमने सामने बैठ के, विच हुक्का भी अक्सर पड़ा होता। कई लोग अमीर, उनका बरामदा बड़ा है, जैसे जुनेद साहब, उन पर ज्यादा मंजियां होती थी ना। हाँ जी, वो बरामदे में भी चारपाइयां, जैसे टीवी लॉन्ज है ना, इस तरह बरामदे होते थे बैठने के लिए, और उन बरामदों में भी या सहन में भी चारपाइयों पे ही अक्सर सिटिंग की जाती थी, जो अब आहिस्ता आहिस्ता मुक गई हैं, बल्कि चारपाइयां ही मुक गई हैं। सिटिंग क्या, चारपाइयां ही खत्म हो गई हैं, अब तो बेड आ गए हैं, वो बेडरूमों में लगे होते हैं। उस वक्त ये नहीं था होता। अब चारपाइयां क्या मुक गई हैं, सिटिंग ही मुक गई है। अब लोग मिलके बैठते ही नहीं है। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, इसी फर्नीचर में आ जाएं अब बेडरूम की तरफ। बेडरूम में जो बेड होता था ना जी पहले, वो नवार का ऊना होता था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सफेद नवार होती थी, उसके भी ऐसे गोले से मिलते थे, तो बाजार से उसके ऊपर स्टिकर लगा होता था। वो खवातीन घर में खुद उन लेती थी, ऐसे गोल सा लपेटा होता था, जैसे फायर ब्रिगेड वाले पाइप नहीं लपेटते। और इतना चौड़ा सा। हाँ जी, हाँ जी। वो ला के तो उसके साथ बेड ऊन लिया जाता था। मर्द भी ऊन लेते थे घरों में, बल्कि अक्सर मर्द ये काम कर दिया कर। बिल्कुल। अब तो मर्द हजरात जो हैं वो कहते हैं ना जी, नहीं मैंने अखबार के दफ्तर भी जाना है, मैंने जाके शो भी करना है, अल्लाह टके का काम नहीं करना होता है। मैंने प्रोग्राम में जाके जुगते भी दफ्तर में भी बैठ के हमें टर्न चाय लाओ, इधर भी बैठ के हमें ये रूबरू पाया थे हो गए। बहरहाल उस वक्त अक्लमंद और बड़े सुगड़ मर्द होते थे, बेवकूफ मर्द नहीं थे। 2 मिनट और उधर कोई ना लगाओ, देखे, उधर कोई ना देखे। 2 मिनट और लगाओ जी, एक तो चाय कहता हूँ, और क्या कहता हूँ, बातें बूते। तो मेरा मतलब है कि वो अब सारा खत्म हो गया जी। बिल्कुल, वो बेड का उनना शुनना ये वो भी मुक गया। क्या ये चीजें बाय कहेंगी या आगे जाएगी अजीजी? अब तो आगे जाना, पीछे कौन जानता ही मेरे अपरावा। अब तो वो चीजें बदल गई। अब तो बेड बुड सारे वो जो लकड़ी का जाल सा और उसके ऊपर फोम का गद्दा, अब तो फोम का गद्दा ही चल रहा है। और फिर इसी बेड के ऊपर अपना रुई के गद्दे, वो भी घरों में बनाए जाते थे, नंगंदे जाते थे। बल्कि अब तो मैं पिंडों में देखता हूँ, किसी वक्त पिंडों में बड़ी फूफी की तरफ जाऊं तो फूफो के घर में भी बेड के ऊपर फोम का गद्दा ही पड़ा होता है। हालांकि फूफी मेरी हमेशा कहती यही है, खोम का गद्दा, खोम का। मैं कहता हूं फूफो फोम का गद्दा, आहो खोम का गद्दा पाया। फोम कहना नहीं आता, मानसत के जाए तो डाला हुआ है फोम का गद्दा। अच्छा, ड्राइंग रूम में एक और लकड़ी की चीज बनी होती थी, एक फ्रेम लकड़ी का, और ऊपर तस्वीर के फ्रेम में लगी होती थी। जो भी सरबराह खाना होता था, जब वो हज से वापस आता तो हार पहने होते थे, वो तस्वीर जरूरी होती हाँ थी। जी, या कोई मुंडा दुबई चला जाता था तो फिर उसकी फोटो भी लगी होती। नहीं, जो दुबई लड़का चला जाता था उसकी तस्वीर आमतौर पे उसके भेजे हुए टीवी के ऊपर रखते। और वो भी उस मुंडे दी जेड़ा पैसे भेजदा सी, जेड़ा उथों फोन करदा सी ना, काम ही कोई नहीं लभण दिया, ओदी फोटो नहीं सन लांदा। अज जब काम लभेगा तो फिर जात भी यही फोटो लपेट के परा रख जाती। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल। और एक छोटी सी बात ये, ए खाक के पुतले तुझे इदराक नहीं है, कुछ और भी है तुझ में, फकत खाक नहीं है। बहुत अच्छा। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।